Good evening, students. In the previous video, we discussed about rotational equations, motion equations of rotational motion. Then we discussed about torque, its Cartesian form, and we end up with Cartesian form as this: if the body is rotating in xy plane, the torque is along z, and it is x fy minus y fx. Right? Now this was Cartesian form. Why? Because the coordinate is xy. In form of xy, we define this old expression of torque. That's why it's called Cartesian form. Also, torque in Cartesian coordinates form. In this video, we will discuss torque in polar coordinates form, also called as polar form of torque. Now, what are polar coordinates? Polar coordinates are r and theta. Okay, so if you remember the figure of the previous video, the figure was like this. This is the body, okay, where this is the radius, the distance, the circle which is rotating. It is rotating in this circle of radius r, and somewhere here the force was acting F, right? And this F was having two components. One was Fx in this direction and one was Fy in this direction. And this coordinate is x comma y, right? Okay, class. So this coordinate was x comma y. So that means this distance is x and this distance is y. I hope you understand. What is my job? My job is to convert that Cartesian form into coordinates form, polar form. Polar form is what? Convert that x in terms of r and theta. So in the previous video, in the conversion, I have shown you that this is r. If this coordinate is xy, then what is this? This is y. And what is this? This is x. And this angle was theta. Right? And what is x? X is r cos theta. And what is y? Y is r sin theta. एक ही convert हो गया r of theta के form में. Next conversion is, see here, I need to convert fx and fy also. How to convert? इसको straight line खींचो. Let this angle is alpha. When this angle is alpha, alpha. Okay. Then ये f है, ये इसके साथ alpha angle बनाना है. Then what is fx? Can I say f cos alpha? And what is fy? Can I say f sin alpha? Resolving कर रहा हूं मैं, resolve कर रहा हूं. जिसके साथ theta angle बनाता है वो f cos theta होता है. तो f के साथ ये x है, इस तरफ alpha angle बनाता है. This is what? F cos alpha, and इससे perpendicular there is f sin alpha. Fy is f sin alpha. So now see, what are these two things I did? I have converted my xy in terms of the r and theta. Okay. Now we will substitute. Now see, torque in Cartesian form. Cartesian form. Torque z. कितना है? Z, forget about it for the time being. I understand why that subscript z was there, to show that the torque is along z axis. What was torque? X fy minus y fx. Now simply substitute the value. What is x? R cos theta. What is fy? F sin alpha minus what is y? R sin theta into what is fy? Fx. F sin cos alpha. अब देखो R f बाहर है, क्या बचा? Sin alpha cos theta minus cos alpha sin theta. Now what is? Oh my god, my dog. Sin A cos B minus cos A sin B. Can I say sin of A minus B? Okay. Sin of alpha minus theta. Now what is this alpha minus theta? Okay. Now the angle between R and F is phi. Angle between R and F. R. ये R इधर चला जाएगा ऐसे करके. Let this angle. Can I say? Since alpha equals to theta plus phi, exterior angle theorem. Exterior angle theorem. What is my job is? My job is that I want to convert my expression in terms of that angle, which is the angle between R and F. मुझे R और F के बीच में angle चाहिए, ठीक है ना? So मैं alpha minus theta को phi लिख सकता हूँ. What is torque? RF sin phi. आ गया Cartesian form. We can say R vector, torque vector equals to R vector plus F vector, that is RF sin phi. But phi is the angle between R and F. This is F, this is R. ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में डेरिवेशन हो गया. ओके. नाउ
यहां से कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछते हैं. वन क्वेश्चन दे आस्क. Okay, that I will write as a note. Okay, now try to understand nicely. Again, let's make a figure. This is f. Earlier, we resolved f along x-axis and along y-axis. Now, I will try to resolve x along the radius and along the direction perpendicular to radius. Okay, so this is radial component and this is transverse component. So what is FR? FR is radial component of force. Radial component of force. That means along the radius. इस सर्कल में घूम रहा है ना बेटा, ये इस सर्कल में घूम रहा है, तो कहना से this is radius R. And what is FT? FT is transverse component of force. Okay, that is perpendicular to radius. A component which is perpendicular to radius. Now see, I need this angle then. इसको इस तरह रिजॉल्व करने के लिए ये एंगल चाहिए. तो ये एंगल है क्या? ये एंगल है रेडियस और फोर्स के बीच का एंगल. वो कितना था? फाई था. That means this angle is phi. So can I say FR is F cos phi and FT is F sin phi? ये समझ में आ रहा है? F cos phi, F cos phi perpendicular, F sin phi. And in the top expression we have RF sin phi. But can I say F sin phi is FT? तो यहां से क्या प्रूव हुआ? यहां से ये प्रूव हुआ the torque is always due to transverse component of force and there is no torque due to radial component of force. These things you will write it down. And this asks in the exam. See, proof, like discuss. Prove that the torque due to a force is only due to its transverse component. तो तुम्हें ऐसे रिजॉल्व करके दिखाना पड़ेगा तो कि टॉर्क के एक्सप्रेशन में जो फोर्स का कंपोनेंट आता है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है. So you write here again. I am repeating. Listen very carefully. This shows the torque is due to transverse component of force and there is no torque due to radial component of force. Okay. Next, there is some conceptual problem asked. Some practical application based problem asked from the torque expression. Okay, अब उस चीज को ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं. Very interesting. Okay, and practical day-to-day life situation. Conceptual problem basics. Conceptual problem basics. We know what is torque. Torque is also called as moment of force. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Okay, R F sin theta, where theta is what? Angle between R and F. वो अभी जो इस डेरिवेशन में थीटा किया था ये वाला थीटा नहीं है ये, ठीक है. यहां पे तो ये थीटा फाई है ना, इस एक्सप्रेशन में थीटा फाई है. मैं जनरलाइज बोल रहा हूं थीटा इज द एंगल बिटवीन R and F. What I need to understand is that what are the situations when torque is maximum. So there are three conditions. When sin theta is maximum, that is +1, that is sin 90, that is theta is 90 degree. First condition. Next, when R is maximum, that is the perpendicular distance. Third condition, when the force is maximum. So mathematically we understand कि torque maximum कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री होगा, R max होगा, F max होगा, तब जाके torque maximum होगा. ठीक है. Next, what is the need of torque? How we will understand? By reading a conceptual question that we need to think about torque. Need of torque मतलब क्या? When a force do a turning effect, then only we talk about moment of force, right? जब एक फोर्स टर्निंग इफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ नट खोलना है, तो नट को तो लीनियर मोशन से नहीं खोलते ना, गोल गोल घुमा के खोलते हैं. तो फोर्स लगा रहा है और टर्निंग इफेक्ट कर रहा है. और ओपनिंग ऑफ अ डोर, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ डोर. अब ये डोर कैसे टर्निंग इफेक्ट किया बेटा? हाउ वी कैन से द डोर इज डूइंग अ टर्निंग इफेक्ट? ये कैसे पता चलेगा? देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डोर.
एंड दिस इज द क्लैंप पार्ट एंड दिस इज द फ्री एंड। तो डोर ऐसे करके खुलता है, ओके इससे ऐसे करके खुलता है डोर, ये क्लैंप पार्ट है, ऐसे करके डोर खुलेगा, ये नहीं मूव करेगा, ये वाला पार्ट फिक्स है। दिस इज द ओपन एंड। सो दिस इज एक्चुअली इन अ हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ओके इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये डोर एक्चुअली ऐसे गोल गोल घूम रहा है about this axis of rotation, about this axis the door is, so when I open or close the door, actually it is undergoing a rotational motion, okay so whenever we are applying some force and that force is doing a turning effect, then we talk about the torque। अभी तक मुझे ये समझ में आया, ठीक है ना। अब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या आता है यहां से, ये सब इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करना पड़ेगा, ओके चलो एक एग्जांपल देते हैं। मैं अपने कार को लेके एक गैरेज में चला गया, ठीक है, कार गाड़ी, मेरा टायर को खोलना है, मुझे कुछ काम करवाना है जिसमें टायर खुलेगा, ठीक है। तो उस गैरेज में एक बंदा था और उसका एक काम करने वाला एक आदमी था जो कि बहुत पतला था, एक वो खुद बंदा था ओनर जो कि बहुत मोटा था, ही इज द ओनर, और उसके पास एक लेबर था जो कि काम करने वाला था और जो कि पतला आदमी था, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स ओनर खुद तो काम करेगा नहीं, वो बोलेगा बेटा ताकि टायर खोल, टायर के नट्स को खोल, बाकी मैं देखूंगा। तो ये बंदा क्या किया, ये बंदा एक रेंज लेके आया, ऐसे करके एक रेंज है, ये रेंज को लेकर, दिस कॉल रेंज, टायर के नट्स खोलने के लिए, हड्डी नहीं है, कुत्ते का खाने वाला हड्डी नहीं है, ये एक रेंज है जो टायर के नट्स को खोलने के लिए काम करता है, ठीक है ना। एक्चुअली टायर के नट खोलने के लिए ये रेंज काम नहीं करता है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज रेंज। ये बंदा क्या किया, इस रेंज को लेके टायर के नट को खोलने का कोशिश कर रहा है, कोशिश, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, मान लो ये नट है, ओके ये एक नट है, ऐसे करके इसका नट है, उसने इसमें ऐसे करके रेंज बैठाया और इस बंदे ने, इस पतले बंदे ने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर, टॉर्क मैक्सिमम आएगा, ओके। अब टॉर्क की तरफ क्यों जा रहे हैं भैया, वो तो फोर्स लगा रहा है, तो क्या फोर्स से ये नट घूमेगा, नट खोलने के लिए टर्निंग इफेक्ट चाहिए, तो फोर्स मैक्सिमम नहीं चाहिए, टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, ये दिमाग में घुसाओ, मुझे फोर्स मैक्सिमम नहीं चाहिए नट को खोलने के लिए, टॉर्क मैक्सिमम चाहिए। वो टॉर्क मैक्सिमम मैं कैसे करूं, वो डिपेंड करता है, क्या फोर्स को मैक्सिमम करके खुलेगा, कि रेडियस को मैक्सिमम करके खुलेगा, आर को मैक्सिमम करके खुलेगा, कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा, ठीक है ना। ओके सो आई नीड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द फोर्स, आई डोंट नीड मैक्सिमम फोर्स, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, बिकॉज नट कैन ओपन बाय सर्कुलर मोशन, नॉट बाय लिनियर मोशन, दैट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स आई नीड मैक्सिमम। तो ओके नट को खोलने के लिए भी मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, उस बंदे को पता है, उस बंदे, इस ओनर ने इस बंदे को सिखाया हर टाइम फोर्स परपेंडिकुलर लगाना, तो उस परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है पूरा, ठीक है, लगा रहा है, खुला ही नहीं, खोल ही नहीं पाया। तो ठीक है भाई, ये बंदा पतला है ना, तो टॉर्क को तो मैक्सिमम लगा दिया उसने, थीटा को तो मैक्सिमम लगा दिया, फोर्स भी जितना खाया पिया था सब लगा दिया, नहीं खुला। अब बोलता है बेटा मैं आता हूं, क्योंकि खाया पिया ज्यादा है नहीं, चलो ओनर आ गया, ओनर के पास ज्यादा दम है, उससे और उसे पूरा दम लगा दिया, ठीक है ना, फिर भी नट नहीं खोला। ओनर में तो ज्यादा फोर्स था क्योंकि ओनर मोटा था, हेल्दी था, और लेबर पतला था, तो एफ मैक्स थीटा मैक्स, तो ओनर ने भी एफ मैक्स लगाया, थीटा मैक्स लगाया, फिर भी नहीं खोला। अब मैं था उधर खड़ा हुआ, तो मैंने तो थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है, तो मैंने बोला भाई साहब सारा हिम्मत तो लगा दिए, सारा दम लगा दिए, आपके लेबर ने भी लगा दिया, आपने भी लगा दिया, नहीं खुला। अब थोड़ा मेरा दिमाग नहीं, सुनिए। तो मैंने बोला ओनर भैया आप बैठ जाइए, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप आ जाओ, लेबर भैया आप आ जाओ, और एक काम करो, इसमें पाइप डाल दो और इसको लंबा कर दो, ठीक है। लंबा करने का, अच्छा छोटू अब तू लगा फोर्स, अब उसने फोर्स लगाया, खुल गया। इसका मतलब क्या, उसने एफ को और ज्यादा लगाया नहीं, जितना खाया पिया पहले था उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन अब नट खुल गया, क्यों, क्योंकि अब रेडियस बढ़ गया, द डिस्टेंस, दिस इज द रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां घूमेगा बॉडी, एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड
तो कहने से एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के बीच का डिस्टेंस इज आर, तो आर बढ़ा दिया ना उसने। ओके, तो ऑफकोर्स आर बढ़ा दिया, तो जो फोर्स पहले लगा रहा था उस फोर्स से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, अब जो फोर्स लगा रहा था दोनों फोर्स सेम, लेकिन अब टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आर बढ़ गया। दैट्स व्हाई वी यूज लॉन्ग रेंज हैंडल, वी प्रिफर लॉन्ग रेंज हैंडल ओवर अ शॉर्ट रेंज हैंडल फॉर ओपनिंग अ नट, बिकॉज देयर वी डोंट नीड टू अप्लाई मच फोर्स। अब मुझे देखो ओनर फैटी आदमी का जरूरत नहीं पड़ा, उतना दम का जरूरत नहीं पड़ा, मैं एक लेबर से भी खुलवा सकता हूं, पतला सा आदमी भी खोल देगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रेंज को बड़ा कर देना पड़ेगा। क्लियर? सो दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच यू यूज। तो अगर तुम फ्यूचर में कभी कभी नट नट बाइक का गाड़ी का खोलना चाहते हो, तुमसे नहीं खुल रहा, तो तुम क्या करोगे, हैंडल को बड़ा कर दो। तुम्हें दम ज्यादा नहीं लगाना है, दम ज्यादा लगाओगे तो खराब होगा, नट्स खराब हो जाएंगे। तुम्हें दिमाग लगाना, तुम्हें पता होना चाहिए कि नट खोलने के लिए फोर्स ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स का जरूरत। अब मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा लगाने के लिए अब मेरे को क्या क्या पता चला कि मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन ये और इन दोनों पे हम डिपेंड नहीं करते हैं। थीटा हर टाइम परपेंडिकुलर लगाते हैं हम लोग, कोई इस थीटा को ऐसे ऐसे करके यहां से फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसे थोड़ी फोर्स लगाएगा। ऑफकोर्स सबको ऐसे फोर्स लगाएगा ना उसको घुमाने के लिए, तो सबको टॉर्क 90 डिग्री में लगाते हैं और सबको जितना खाया पे सारा दम लगाते हैं, फिर भी नहीं खुलता है तो हम क्या करते हैं, लंबा रेंज लगा देते हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस दैट वी नीड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट अब आते हैं डोर हैंडल्स में। ओके, ये मान लो डोर है, डोर का हैंडल एक कोने में रहता है। कभी देखा है डोर का हैंडल बीच में रखा हुआ? नहीं। क्यों? अब अगर डोर का हैंडल बीच में होगा, मान लो ऐसा है डोर, दिस इज अ डोर, वो ऐसे खुलेगा, दिस इज द हैंडल, ऐसे करके ऐसे खुल रहा है, ठीक है। अगर डोर के हैंडल को मैंने इधर रख दिया तो क्या होने वाला है, तो जब हम फोर्स लगाएंगे वो ऐसे करके फोर्स लगाएंगे इधर, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर डोर का हैंडल इधर होगा तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां बढ़ गया ना। And when we open and close the door, it is actually doing a turning effect. That means force how much we are applying, that is not necessary. The moment of force is necessary. टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, तो टॉर्क ज्यादा होने के लिए मैं डिस्टेंस को बड़ा करूंगा, इसलिए हैंडल दूर में रखा जाता है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ गया, क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, विद अ स्मॉलर फोर्स आल्सो वी कैन ओपन और शट द डोर। बट इफ द डोर हैंडल इज इन वन दिस साइड, then we have to apply more greater force to open or close the door. Clear class? So this is all about the torque. Okay, now we'll go to the next topic, that is angular momentum. Class, I missed one topic, that is before going to the angular momentum, let's do one more topic, power associated with torque. Again, to understand this topic, let's go to the linear motion. Okay, power associated with force, power associated विथ फोर्स। चलो इसके बारे में बात करते हैं। एक बॉडी है जिससे मैंने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद वो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड उस बॉडी में कुछ वेलोसिटी आ गया v, तो मुझे पता है पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, और वी कैन से पावर इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट v वेक्टर, f v cos थीटा, ये मैंने पढ़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड पावर एसोसिएटेड विद फोर्स। कुछ फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी में कितना पावर आ गया एसोसिएटेड विद फोर्स, कितना आ जाता है, एफ भी आ जाता है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। सिमिलरली पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, तो जब कोई बॉडी गोल गोल घूमता है उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाता है, तो पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, और इन स्केलर फॉर्म टॉर्क इनटू ओमेगा। बस यहां पे तो ओमेगा वेक्टर नहीं लगाते, वी सिंपली राइट पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा। दिस इज कॉल्ड पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। क्लियर? अब ये लाऊं कैसे, हाउ टू डिराइव दिस, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको डिराइव कैसे करो, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा कैसे आएगा, वो तो मैंने रोटेशन एनालॉजी किया ना। टॉर्क और फोर्स था तो टॉर्क होगा, वेलोसिटी था तो यहाँ पे ओमेगा होगा, ये तो मैंने रोटेशन एनालॉजी किया। लेकिन इसको डिराइव कैसे करूं, फिर कहां से लाऊं, किस तरीके से लाऊं,
हाउ वी गेट इट, कैसे लाएंगे बताओ, सोचो, थिंक अबाउट इट। तो ये कैसे लाएंगे ये सोचो पहले। तो पावर होता क्या है भैया, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, दैट इज पावर। सो व्हाट इज वर्क डन, टॉर्क इनटू थीटा। सो इफ आई डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी डी टी ऑफ टॉर्क इनटू थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज व्हाट पावर, टाइम के साथ टॉर्क चेंज होगा कि थीटा चेंज होगा, द बॉडी इज मूविंग, थीटा इज चेंजिंग विथ टाइम, टॉर्क इज कांस्टेंट, सो d theta by dt, what is d theta by dt, omega, so power equals to torque into omega. A small topic which I left, okay, this is all about power associated with the torque. Now we go to the next topic, that is angular momentum. इससे हमें बहुत कुछ है हमारे बुक्स में, उतना कुछ नहीं पढ़ना है क्लास, not significant, it's just a small knowledge about angular momentum होता क्या है, okay, angular momentum. Angular momentum is denoted by L. Okay. Again, first point. It is the rotational analogy. Okay, ये rotation analogy है किसका, linear momentum का, of linear momentum. Okay, जैसे force equals to differentiation of rate of change of linear momentum होता है ना, right? Similarly, torque is nothing but rate of change of angular momentum. यहां से पता चलता है कि that torque is due to rate of change of something, that something is called as angular momentum, because force is rate of change of linear momentum, तो torque भी तो rate of change of something होगा ना, that something is called angular momentum. Okay, next, how to calculate this angular momentum, same concept, force, जैसे टॉर्क निकाला था, वो कैसे निकाला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क का लीनियर एनालॉजी था, तो एंगुलर मोमेंटम का लीनियर एंगुलर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एवरीथिंग इज सेम व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। जो भी हम टॉर्क निकालने के लिए करते थे ना, वही ये भी है, टॉर्क इक्वल्स टू ओके P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां पे फोर्स इंटू डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिखता हूं R क्रॉस P वेक्टर, जो पहले हमने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा RP sin थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड P। ओके, इतना जानना तुम्हें जरूरी है और कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट, ये P का डायरेक्शन किधर होगा, ये R का डायरेक्शन, जो फिगर हमने पहले पढ़ा था एग्जैक्टली वही फिगर काम करेगा क्लास। ओके, क्यों, हमने पढ़ा था ना इधर फोर्स लग रहा है, तो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा है, जहां वेलोसिटी होती है वही एक्सीलरेशन होता है, वही फोर्स भी लगता है, तो जहां वेलोसिटी होगा वहीं पे अगर फोर्स लग रहा है, तो जहां पे वेलोसिटी होता है वहीं पे तो मोमेंटम भी लगता है ना, मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। क्यों, देखो, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो जहां वेलोसिटी डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो यही हो गया मोमेंटम का डायरेक्शन और यही हो गया आर वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, क्लियर, इस मोमेंटम का दो कोऑर्डिनेट्स होगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग, दो कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस। डन क्लास, ये भी यहां भी हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस, अगेन वी यूज द सेम स्क्रू, व्हाटएवर वी यूज्ड अर्लियर, द सेम कॉन्सेप्ट। यहां भी कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म, दैट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, x py माइनस y px, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया पोलर फॉर्म rp sin थीटा। ओके क्लास, और इसके लेके और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। ओके, ओनली दिस मच। द नेक्स्ट टॉपिक इज वी नीड टू स्टडी व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी क्या होता है, एंड वी विल फेस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। Okay, let's discuss this topic now. Okay, now comes to the equilibrium of a body topic. ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। First we'll study equilibrium of a body. Now, equilibrium of a body means two things: net force 0, net torque 0. In few questions, net force is 0. In few things, net torque is 0.
So if the net force is zero, that means it is translation equilibrium. The body moving in a straight line, and net force is zero, translation equilibrium. And the net torque is zero, that is called as rotational equilibrium. ये जानना है. नेट ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के बारे में क्या क्या आता है? तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा. And when the net force is zero, the body potential energy is constant. These two things you have to remember. Okay. Now, so we understand translation equilibrium मतलब the body which is moving in a straight line, and if the body is moving in a straight line and the net force acting on the body is zero, net force, not force. It may happen the body has multiple forces acting on it, but the net should be zero. Okay, अगर मैं net force zero बोलूं, that doesn't mean the body has no force. Of course, the body is acted upon by forces. That's why it's moving. Okay, now one misconception a student have. Whenever we talk about equilibrium, we think हमारे दिमाग में आता है कि बॉडी रेस्ट पे है. जरूरी नहीं है बॉडी रेस्ट में होगा. ओके, अंडरस्टैंड? जरूरी नहीं है बॉडी रेस्ट पे होगा. बॉडी मूव कर सकता है, लेकिन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. Depending on this, there are two types of translation equilibrium: static equilibrium, dynamic equilibrium. Okay, तो हमें जो misconception है ना, the body should be at rest at equilibrium. No, it's not necessary बेटा. Okay, so translation equilibrium मतलब net force zero होगा and potentiality constant होगा. Translation equilibrium is divided into two parts: static translation, static equilibrium, translation, dynamic equilibrium. Static means net force zero, that is body is at rest, velocity is zero. Translation, dynamic equilibrium also means net force zero, but here the body is in uniform motion, velocity is constant. So the misconception which we have in our mind that when the body is in equilibrium, the body is at rest is wrong. It may happen the body is moving but in uniform motion, that is velocity is constant, but that belongs to a dynamic equilibrium condition. The numericals which you will face in the examination, which we have in our syllabus, we related to only static equilibrium. We have to study in detail only static equilibrium nicely. Dynamic equilibrium को उतना अच्छे से numerical हमारे पास नहीं है, and we don't have. Just you have to remember that when we talk about equilibrium are of two types: translation, rotational. Translation again are of two types: static, dynamic. Equilibrium doesn't mean the body is at rest. ये जानना है. हाँ, if I say body is at rest, then that is translation, static equilibrium. Clear? Okay. Next. There are different types of static equilibrium also: unstable, stable and neutral. इनके बारे में ध्यान से समझो. फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ध्यान से सुनना. इसका कैप राइट साइड में है, इसका ऑरेंज है लेफ्ट साइड में. ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये कहीं मूव नहीं कर रहा. अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको थोड़ा डिस्प्लेस किया ऐसे. अगर ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, मतलब कैप राइट साइड, ऑरेंज लेफ्ट साइड में ही है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. बॉडी रीगेन और ट्राई टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेस और डिस्टर्ब फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, वापस उसी पोजीशन में आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम क्लास. इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो थोड़ा ऊपर चला जाता है. ओके, आफ्टर डिस्प्लेस. जैसे मैं थोड़ा डिस्प्लेस किया ना बॉडी को, तो ये बॉडी वापस रिगेन तो करेगा, बट सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब थोड़ा ऊपर चला जाएगा. सेंटर ऑफ मास रेज ऑन आफ्टर डिस्प्लेस, थोड़ा बढ़ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा. नेक्स्ट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है. ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है. अब मान लो ये बॉडी ऐसे इक्विलिब्रियम में है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया. अब ये क्या किया, ये घूम के वापस ऐसा हो गया, अब फिर से इक्विलिब्रियम आ गया. इसमें क्या हुआ, जब इसको मैंने थोड़ा डिस्प्लेस किया, इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल, जो प्रीवियस वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन था, कैप राइट साइड, ऑरेंज लेफ्ट साइड, इस पोजीशन में नहीं था, वो इस पोजीशन में आ गया. दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल. इट इज इन इक्विलिब्रियम बट नॉट स्टेबल, अनस्टेबल. इसको डिस्प्लेस करूंगा तो फर्दर डिस्प्लेस हो जाएगा. बॉडी डोंट रीगेन इट्स प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स फर्दर डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेस और डिस्टर्ब. डिस्प्लेस करने के बाद फर्दर डिस्प्लेस हो जाएगा. इन दिस केस सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे हो जाता है, पहले यहां पे था, थोड़ा नीचे चला जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में ऐसे कर दिया, इक्विलिब्रियम में ऐसे कर दिया, फिर से इक्विलिब्रियम में, वापस रीगेन नहीं करेगा. किसी भी पोजीशन में ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा. बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पोजीशन और रिमेन इन इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. वो इक्विलिब्रियम में रहता है. इन दिस केस सेंटर ऑफ मास हैज नो चेंज इन द हाइट. जो पहले था डिस्प्लेस करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे है,
उसके बाद भी वहीं पे है. Okay, there is no change in the height of the center of mass. Now, what is rotation equilibrium? We understand net torque 0. Now, what is the meaning of net torque 0? Net torque 0 means what? Net anti-clockwise torque will be equal to net clockwise torque. This is the funda of numericals. Okay, this is all about the theory of equilibrium of a body. ठीक है ना. अब इसका एक न्यूमेरिकल आता है. Okay, when we will do the numerical, then I will teach you the numerical concept of this topic. Okay, किस क्वेश्चन में यूज होगा, जब क्वेश्चन करेंगे हम तब मैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा. थ्योरी में आपको उसे लिखना पड़ना है. नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी दिस थिंग ऑन योर ओन, दैट इज व्हाट इज लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन इज अ रोटेशन एनालॉजी ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रोटेशनल एनालॉजी करना है. व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? A body continues to be in state of rest or in a state of motion until an external force acts. इसको rotation एनालॉजी करो. A body continues to be in state of rest or in a state of uniform rotational motion until an external torque acts. Force की जगह torque लग दिया, rotational motion डाल दिया. That is first law of rotational motion. What is second law of momentum? The second law of Newton's second law. The rate of change of momentum is directly proportional to the force. इसको rotation एनालॉजी करो. The rate of change of angular momentum is directly proportional to the torque experienced by the body. Okay. Next, third law. For every action there is an equal and opposite reaction. इसको rotation एनालॉजी करो. For every applied torque, reaction action are force ना. रिएक्शन एक्शंस आर फोर्स. फोर्स को रोटेशन मोशन में टॉर्क बोलते हैं. फॉर एवरी अप्लाइड टॉर्क देयर इज इक्वल ऑपोजिट टॉर्क एक्ट ऑन द अदर बॉडी. ओके, खत्म. ओके, सो दिस थिंग्स यू नीड टू स्टडी ऑन योर ओन. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल गो टू द सेकंड पार्ट, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. थैंक यू क्लास.